और आइए अब आपको एक लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अनुराग ठाकुर एक किताब का विमोचन कर रहे हैं, जहां पर for the release of the book titled Ambedkar and Modi Reformers Ideas for Farmers Implementation. आपको तस्वीरों में इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं, अनुराग सिंह ठाकुर नजर आ रहे हैं, हितेश जैन आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम गणमान्य व्यक्ति इस वक्त मौजूद हैं किताब के विमोचन के मौके पर, और जिस किताब का नाम है अंबेडकर एंड मोदी। Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. We welcome Shri Hitesh Jain, Director, Blue Craft Digital Foundation, the very force behind this book. Ladies and gentlemen, the book Ambedkar and Modi chronicles Dr. Ambedkar's influence and its far-reaching impact on making of new India, while reflecting upon multitude of contributions made by Dr. Ambedkar in the nation-building process. The book studies the points of intersection of India's development story under Prime Minister Modi and also the ideals of Dr. Ambedkar. And indeed, you all will agree, ladies and gentlemen, that it is a special occasion today because we have the luminaries with us today who in their individual capacities have contributed in making of aspirational Bharat, New India, and their unflinching belief in powering social and economic mobility. Now, as a mark of our gratitude to our esteemed guest of honor and our chief guest, we first start with the felicitations, please. I request Shri Anurag Singh Thakur, Minister of Information and Broadcasting, Sports and Youth Affairs, to present sapling and a shawl to our chief guest, former President of India, Shri Ramnath Kovind. Ladies and gentlemen, please join your hands. I now request Shri L. Muruganji to present sapling and shawl to our guest of honor, former Chief Justice of India, Justice K.G. Balakrishnan. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Thank you. And I now request Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Vikram Sahai ji, to present shawl and sapling to Honorable Minister, Shri Anurag Thakur Singh ji. Okay. And Vikram sir will also felicitate MOS INB, Shri Murugan ji. Thank you very much, sir. And Vikram Sahai, Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, will also present sapling and shawl to Hitesh Jain, Director, Blue Craft. Once again, let's have a round of applause. विक्रम सहाय सर दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक किताब का विमोचन हो रहा है और उसी का ये कार्यक्रम है। दिल्ली से तस्वीरें जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं, उनका स्वागत किया गया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। ये दिल्ली से मंच की तस्वीरें देख रहे हैं आप। पूर्व सीजेआई बालाकृष्णन भी समारोह में शामिल हैं। अंबेडकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की किताब का विमोचन किया जा रहा है और उस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भारत 24 आपको दिखा रहा है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं और केंद्रीय
मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अभी तक के जीवन, उनके राजनीतिक करियर, वो भी अपने आप में एक बड़ी मिसाल है और एक किताब में इन दोनों ही किरदारों को सजोने की कोशिश की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस आदरणीय श्री बालकृष्णन जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रिय डॉक्टर मुरुगन जी, डायरेक्टर ब्लू क्राफ्ट श्री हितेश जैन जी, उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय अधिकारी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित विशेष तौर पर सभी प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपार हर्ष का विषय है कि अंबेडकर व मोदी, अंबेडकर एंड मोदी, इस पुस्तक का विमोचन आज किसी और के कर कमलों से नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से हो रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से हो रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स, आइडियाज और परफॉर्मर्स एग्जीक्यूशन, ये अपने आप में अंबेडकर जी के विचारों पर प्रकाश भी डालता है और किस तरह से मोदी जी ने उनको लागू किया और आम आदमी के जीवन में किस तरह से बदलाव लाने का काम किया है। यानी बाबा साहब ने जो समाज के लिए सोचा उसको मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में कैसे कर दिखाया, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर जी के साकार होते सपनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भगीरथी प्रयासों से धरातल पर उतार कर दिखाया है और ये साफ चिराग करता है कि जहां चाह वहां राह है। भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब के विचारों ने हमारे राष्ट्र की नींव रखी है और बाबा साहब का संपूर्ण जीवन जो है वो समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है। वह दलितों, पिछड़ों और वंचितों के महानायक थे। उनके जीवन मूल्य और सिद्धांतों का आधुनिक भारत के निर्माण पर व्यापक प्रभाव है। देश को जब आजादी मिली तो प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना थी कि कैसे समाज में विसंगतियों से दूर किया जा सके, कैसे बहुजनों को, वंचितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, विकास की गंगा सब तक पहुंचे और भारत एक विकसित देश की ओर कैसे अग्रसर हो। ये इनके विचार थे और कल्पना भी थी। दुर्भाग्य ये रहा कि आजादी के बाद कई दशक बीत जाने तक कई सरकारें आई लेकिन उस दिशा में ज्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन 2014 में जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया की महाशक्तियों के साथ कदम ताल कर रहा है। कैसे मातृभाषा को कैसे प्राथमिकता दी गई है और जो बाबा साहब के विचार थे कि वंचितों को, पीड़ितों को शिक्षा दिलाकर, स्किल्स दिलाकर स्वरोजगार के अवसर और आगे बढ़ाने का काम करना है। यही बाबा साहब का जीवन मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास मॉडल के मूल में रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में हमारी सरकार प्राथमिक, उच्च शिक्षा व चिकित्सक शिक्षा को तीव्र गति से बदल रही है।
अगर आप पिछले 8 वर्षों में देखें कितने ही IIT, IIM, NIT से लेकर IIIT देश में बने। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या को भी लगातार लगभग 204 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज पिछले 8 वर्षों में नए खोलने का काम किया गया, जो शायद कभी 8 वर्षों में इतना ना हुआ हो। सीटें जो 78,000 थी उसको बढ़ाकर 1,06,000 से ज्यादा करने का काम किया गया। आज हमारे देश में जो डॉक्टर्स की कमी थी उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च शिक्षा से लेकर अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही। अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो हजारों गांव थे जहां बिजली नहीं थी। पिछले 8 वर्षों में हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा कर लिया है और LED के बल्ब देकर बिजली बचाने का काम भी किया है। बैंक खाता 45 करोड़ लोगों का खोलने का काम किया, तो आपदा के समय गरीब बहनों के खाते में 31,000 करोड़ रुपए की मदद डालने का काम एक बटन से किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भीम प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, आज आप UPI भीम की बात करें तो दुनिया भर के लिए उदाहरण के रूप में डिजिटल पेमेंट सिस्टम भारत का बना है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। वहीं पर उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया, 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाने का काम किया। आप कल्पना कीजिए, जिस बहन के दिन की शुरुआत पहले खुले में शौच करने जाने के लिए सूर्योदय से पहले होती थी, जंगल में लकड़ी ले जाने के लिए और चूल्हा जलाने के लिए, फिर धुआं खाने के लिए होती थी, आज उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। जिसको पानी लाने के लिए दिन में कई घंटे मुशक्कत करनी पड़ती थी, कभी कतार में लग के, कई बार कुएं पे जाकर, कई बार नदी के किनारे जाकर, अगर उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कोई लाया है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर करने का काम किया है। हर घर को नल, नल से जल देने का काम हो, या फिर महिला विकास के बारे में मोदी जी ने कहा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ये सारे जो मैं बातें कर रहा हूं, ये सारे महिलाओं को ही केंद्र बिंदु में रखकर किया गया है, उनके ही जीवन में बदलाव लाया गया, लेकिन उनको ही महिला सशक्तिकरण करने के माध्यम से किया गया है। मातृत्व अवकाश की हम बात करें, मैटरनिटी लीव की बात करें तो 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का काम किया। महिलाओं के नाम संपत्ति करने का काम किया। मुद्रा लोन भी अगर आप देखेंगे तो मुद्रा लोन में बगैर गारंटी के ऋण देने का काम भी किया। और आज SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग को ऐसे 34 करोड़ खाता को 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए, तो बगैर गारंटी और बगैर कोलेटरल गारंटी के दिए, तो मोदी सरकार ने दिए। उज्ज्वला योजना में, अगर उज्ज्वला योजना में SC, ST लाभार्थी देखने तो 3 करोड़ 10 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए और 1 करोड़ 31 लाख पक्के मकान SC, ST के परिवारों को दिए गए। स्वरोजगार योजना के माध्यम से लगभग 80,000 लोगों को जो मैला उठाते थे उनको 27,800 करोड़ रुपए की मदद करने का काम किया। तो SC, ST के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति में दोगुनी वृद्धि दी और इसके माध्यम से भी 3,600 करोड़ रुपया से बढ़ाकर 7,700 करोड़ रुपया करने का काम किया है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर मिले और लोग उद्यमी बन सके, तो SC, ST को लगभग 5,300 करोड़ रुपए का लाभ यहां से भी दिया है। नवाचार करने के लिए उद्यमियों की मदद के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई है। यहां पे इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का काम किया। PM दक्ष योजना में भी 2,27,000 SC युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का काम भी किया है। ऐसे न जाने हजारों काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए। जो स्किल डेवलपमेंट से स्वरोजगार की यात्रा थी, डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी SC, ST वर्ग को ज्यादा लाभ देने का काम हुआ। मैं तो ये कह सकता हूं, जो लोग 60 वर्ष में नहीं कर पाए वो 8 साल में करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। स्वनिधि योजना हो तो इसमें भी हमारे रेहड़ी वालों को 10-10 हज़ार से लेकर 50,000 रुपए तक बगैर गारंटी के पैसा दिया और इसमें इंटरेस्ट माफ करने की सुविधा भी दी। आत्मनिर्भर भारत को बल देते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई। बुलेट प्रूफ जैकेट की डिमांड उसको तो पूरा किया ही,
यहां पर हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करके भारत की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ दुनिया भर को सप्लाई करने का काम भी अब आयातक की बजाय निर्यात करने का काम भारत डिफेंस के क्षेत्र में कर रहा है। यह भी आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का कर रहा है। 2014 से पहले श्रम संहिताओं को और प्रक्रियाओं को आम जनमानस की समझ से बाहर थी और इसको हमने 44 जटिल श्रम कानूनों को सावधानी पूर्वक 4 व्यापक श्रम संहिताओं में बांटने का काम किया है। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, इसको हमने पिछले 1 साल पहले इसका पूरा किया और ईएसआई वेतन सीमा को भी 2014 से पहले मात्र 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज मैं आपके सामने बाबा साहब की पंक्तियां दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप स्वयं सहायता में विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छी मदद है, आई अनकोट। ये उसी दिशा में स्वयं सहायता समूह हो या आत्मनिर्भर भारत हो, दोनों ही काम उस दिशा में है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 20 लाख रुपए तक की मदद बैंकों से ऋण बगैर किसी गारंटी के मोदी सरकार ने देने की शुरुआत की और आज करोड़ों बहनें अपने पांव पर खड़ी है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है।